of that independence, one becomes conditional soul, and by the proper use of independence, he is always liberated. In either case, he is qualitatively eternal as the Supreme Lord is. In his liberated state, he is freed from this material condition, and he is under the engagement of the transcendental service unto the Lord. In his conditioned life, he gets dominated by the material modes of nature, and he forgets the transcendental loving service of the Lord. As a result, he has to struggle very hard to maintain his existence in the material world. The living entities, not only human beings and the cats and dogs, but even the greater controllers of the material world, Brahma, Lord Shiva, and even Vishnu, are all parts and parcels of the Supreme Lord. They are all eternal, not temporary manifestations. The word karshati, struggling or grappling hard, is very significant. The conditioned soul is bound up as though shackled by iron chains. He is bound up by the false ego, and the mind is the chief agent which is driving him in this material existence. When the mind is in the mode of goodness, his activities are good. When the mind is in the mode of passion, his activities are troublesome. And when the mind is in the mode of ignorance, he travels in the lower species of life. It is clear, however, in this verse that the conditioned soul is covered by the material body with the mind and senses. And when he is liberated, this material covering perishes, but his spiritual body manifests itself in its individual capacity. The following information is there in Madhyanidinayana Shruti. Sava esha brahmanishta idam shariram martyam atishrijya brahmabhi sampadya brahmana pashyati brahmana shrunoti brahmanaivedam sarvam anubhavati. It is stated here that when a living entity gives up this material embodiment and enters into the spiritual world, he reviews his spiritual body. And in his spiritual body, he can see the Supreme Personality of Godhead face to face. He can hear and speak to him face to face, and he can understand the Supreme Personality as he is. From Smriti also it is understood. Vasanti yatra purusha sarve vaikuntha murtaya. In the spiritual planets, everyone lives in bodies featured like the Supreme Personality of Godhead. As far as bodily construction is concerned, there is no difference between the part and parcel living entities and the expansions of Vishnu Murti. In other words, at liberation, the living entity gets a spiritual body by the grace of the Supreme Personality of Godhead. The word Mamaya Vamshaha, fragmental parts and parcels of the Supreme Lord, are also very significant. The fragmental portion of the Supreme Lord is not like some material broken part. We have already understood in the second chapter that the spirit cannot be cut into the pieces. This fragment is not materially conceived. It is not like matter, which can be cut into pieces and joined together. That conception is not applicable here because the Sanskrit word sanatanaha is used. The fragmental portion is eternal. It is also stated in the beginning of the second chapter that in each and every individual body, the fragmental portion of the Supreme Lord is present. Dehino asmin yatha dehe. That fragmental portion, when liberated from the bodily entanglement, revived its original spiritual body in the spiritual sky, in a spiritual planet, and enjoys association with the Supreme Lord. It is, however, understood here that the living entity, being the fragmental part and parcel of the Supreme Lord, is qualitatively one with the Lord, just as the parts and parcels of gold are also gold. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapradantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Vishya Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Vedanta Swami Nidinamine Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyadi Paschata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So
So what was this purport all about? Anyone would like to say by raising their hands? Whatever I just read, for a few minutes, at least 5 minutes we took for reading this particular purport. So anyone is having any vague idea? What did we speak, or what did Srila Prabhupada write in that purport? What was that purport all about? Anyone? आप में से कोई बताना चाहेगा कि ये जो आप लोगों ने तात्पर्य सुना इतना बड़ा अंग्रेजी में, उसमें श्रील प्रभुपाद कहना क्या चाह रहे थे? अच्छा, किसी ने सुना अच्छे से? हाँ, तो फिर पता कैसे नहीं चला कि क्या सुना? या तो ये भी हो सकता है कि समझ नहीं आया, कि कौन कौन है जिसको समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है? अच्छे से हाथ ऊपर करिए, वही तो कर रहा है ना, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस नो फर्स्ट, क्या नहीं. अच्छा, ओके, ऑनेस्ट. ठीक है, धीरे धीरे ऑनेस्टी आ रही है, सब में मैनिफेस्ट हो रही है. हाथ ऊपर करिए अच्छे से, क्या दिक्कत है? कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि वी हैव टू बी दैट मच, ओके. नहीं पता चला, ठीक है. आप सभी को इंग्लिश कंफर्टेबल है? जितने लोगों ने भी हाथ ऊपर किया, मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो चलेगा आप लोगों को, या फिर थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलो तो अच्छा रहेगा? थोड़ा थोड़ा हिंदी में, ठीक है. अच्छा, तो श्रील प्रभुपाद इसके अंदर बता रहे हैं, जैसे भगवान ही बोल रहे हैं इसमें. ही इज सेइंग दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सोल. जो एक लिविंग एंटिटी है ना, उसका पोजीशन क्या है ये बताया जा रहा है. आइडेंटिटी होता है ना, माई सेल्फ बोलते हैं हम लोग बचपन में. अभी भी आप लोग जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, अपने बारे में कुछ बताइए. बहुत सारी जगहों को बोला जाता है कौन है आप, क्या करते हैं. कहीं भी गवर्नमेंट इंक्वायरी करेंगे वो पूछेंगे, बैंक में जाएंगे वो पूछेंगे. तो सिमिलरली इन दिस पर्टिकुलर श्लोक आवर रियल आइडेंटिटी इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय आवर ओन क्रिएटर, यू कैन से, to whom we belong, the Supreme Father, and which is being further explained to us by Srila Prabhupada. हमको श्रील प्रभुपाद जी उसको और डिटेल में समझा रहे हैं, राइट, उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंप्लीफाई करके. बट वी कांट इवन अंडरस्टैंड दैट सिंप्लीफिकेशन ना. हम लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट है उस चीज़ को समझ पाना. सिंप्लीफाइड चीज़ थी जो हमने पढ़ा, दैट इज़ सो डिफिकल्ट, बिकॉज दैट इज़ आवर पोजिशन. पीपल डू नॉट वॉन्ट टू understand the reality unless and until we present them something complex. जो चीज़ उनको समझ में नहीं आएगी उसी को अप्रिशिएट करेंगे वो. जो चीज़ समझ में आएगी उसको बोलेंगे ये तो कितना सिंपल है ना. इट्स नॉट पॉसिबल. वी आर ऑलवेज टेलिंग पीपल दैट you can go back home, back to Godhead just by chanting the हरे कृष्ण महामंत्र, जो आप लोगों ने अभी इतने enthusiastically चैंट किया लेक्चर से पहले. लेकिन लोग सोचेंगे नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं जब तक हम लोग पैर ऊपर सर नीचे नहीं करें ना, थोड़ा गर्दन के पीछे पैर डाल के कोई योगा आसन ना करे, तब तक भगवान के पास कैसे आएंगे? एक टांग पे हिमालय में ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े नहीं रहे, एक वस्त्र पहन करके, मृग की छाल पहन करके, ठंडी में बड़ी दाढ़ी ना हो जाए, कैसे जा पाएंगे भगवान को? पॉसिबल नहीं. बचपन से टीवीज़ में, सीरियल्स में यही देखते आ रहे हैं, ऐसे भगवान के पास जाते हैं. सो दिस पर्टिकुलर श्लोका इज डूइंग व्हाट इन दिस वर्स? Lord Krishna is defining the relationship of Jiva with him. What is the relationship? That's the main point, right? Main point, मूल हम लोग बोल सकते हैं ना, जिसका मूल अर्थ है क्या है कि वो बता रहे हैं हमको कि what are we doing, why we are doing and who we are ना. कभी कभार याददाश्त खो जाती है तो व्यक्ति पूछता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ. आप लोगों ने भी कभी कभार जीवन में परेशान हो गए होंगे तो आप लोग भी पूछ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में ना, कौन हूँ, क्या करने आया हूँ यहाँ पे, व्हाट एम आई सपोज टू डू ओवर हियर, व्हाट इज़ माई ड्यूटी, क्या करना चाहिए मुझे अपने लाइफ में. सो हियर कृष्णा इज सेइंग एंड श्रील प्रभुपाद एलैबोरेट्स ऑन दैट सब्जेक्ट, दैट द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पर्पट, जो पहला लाइन था उसमें श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दैट वी आर फ्रैगमेंटल, राइट. फ्रैगमेंटल का अर्थ क्या होता है? इफ़ यू लुक एट इन इंग्लिश डिक्शनरी, सोल को पहली बात तो अच्छेद्योयम बोला जा रहा है. इन वन ऑफ द श्लोका द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल इज डिस्क्राइब्ड. फ्रैगमेंटल मीन्स कुछ टूटा हुआ, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से कुछ तो थोड़ा सा निकल गया होगा कहीं से, दैट मीन्स फ्रैगमेंटल. बट इट इज़ नॉट लिटरली द सेम, सिमिलर नॉट द सेम. दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग कि दिस इज सिमिलर वर्ड बट इसका कोई और डिफरेंट वर्ड नहीं है, राइट. तो सोल का कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया जाता है कि उसको कट नहीं कर सकते आप ना, उसको भिगा नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते. ये आत्मा का क्या है, प्रकृति है उसकी, इट्स नेचर
how the soul is by default, right? But यहाँ पे देखेंगे आप, because this is an English language, right? So English language is what? Imperfect. English language is not a perfect language, but still it's been used in the service of the Lord. Unlike Sanskrit, anyone knows what is the meaning of Sanskrit? जो ये शब्द है, संस्कृत का अर्थ क्या है? किसी को पता? कभी किसी ने पता करने का प्रयास किया? लेकिन संस्कृत बहुत लोग सीखना चाहते हैं, हाँ? श्लोकों का उच्चारण भी करते हैं. So what is the meaning of Sanskrit? You know, something which is perfectly made. Samskrita. So that is the meaning of Sanskrit. So everything which is given, it's perfect in that particular format, right? So why Srila Prabhupada? You know, Srila Prabhupada is explaining each and every word very carefully. हम लोग उतना ध्यान देकर पढ़ते भी नहीं जितनी मेहनत वो एक एक शब्द को समझाने में कर रहे हैं, right? We have to focus on that aspect, right? So in this particular verse, the identity of the soul of is clear. What is the identity? Like let's say, वो भी पता चलेगा in the coming phase. We already know that. But first thing is what? In our modern day dealings, जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आपने बहुत लोगों से, क्या पता 2 लोग बात कर रहे हो, आपने कभी किसी को सुन लिया हो, या बहुत सारे टेलीविजन पे कुछ ना कुछ आपने देख लिया हो. वो क्या कहते हैं? व्हाइल यू नो यू आर डीलिंग विद पीपल, दे से यू हैव टू एक्सेप्ट मी एज आई एम, ना, यू हैव टू एक्सेप्ट मी एज आई एम. या फिर कभी कभार क्या बोलेंगे? आई लाइक पीपल टू अंडरस्टैंड मी एज आई एम, बट दैट पुअर फुलिश पर्सन, नो, he doesn't even know that he doesn't understand himself. जो ऐसा बोल रहा है ना कि you have to understand me as I am, he is the one who doesn't know who he is. आप बोल रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, वो स्टेटमेंट बोल रहा है, that will be like discussing further, right? So he thinks that he is understanding who he is, कि वो समझ रहा है कि मैं कौन हूँ, but if he really wants to understand who he is, he should actually read. What he should read is this Bhagavad Gita as it is, to understand who he really is. आप में से जितने लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा. अब when a person says, you know, who doesn't have this knowledge, if he says you have to understand me as I am, so what does he mean by that? उससे वो बोलना क्या चाह रहा है? सबसे पहली चीज़ what he is telling is that here I am. Who I am? I'm a bundle of false ego. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ना, हम सब में है ना. कोई ऐसा बोल सकता नहीं है उसमें. तो वो चाह रहा है कि आप ये समझें कि मैं क्या हूँ, ये सबकी गठरी हूँ, एक बहुत बड़ी, ये भरा हुआ है जिसके अंदर, राइट? इन अदर वर्ड्स व्हाट ही इज सेइंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम अ फूलिश पर्सन. कभी किसी के अंदर बहुत अहंकार होगा तो आप उसको बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छा है, इसके अंदर कितना अहंकार है, ऐसा बोलते हैं? एनीवन सेज? कभी किसी के अंदर बहुत क्रोध होगा, कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा गुण है, क्रोध है इसके अंदर कितना. किसी के अंदर काम होगा, ऐसे ग्लोरीफाई करेंगे उसको कभी? ये 4 जो भी हमने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये किसी भी व्यक्ति में होगा और वो उसको दर्शाएगा आपके सामने. आप कभी बोलेंगे इफ़ ही डिस्प्लेज इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, विल यू काइंड ऑफ यू नो प्रेज हिम फॉर दैट? आप उसको बोलेंगे अरे वाह बहुत अच्छा, मैं आपको समझ गया, बहुत अच्छा, आपने समझा दिया, मैं आपको ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ, I'll accept you as you are, ऐसा बोलेंगे आप उसको? नहीं. So this is the whole thing. Why? Because what he is establishing that here I am the competitor of Krishna. I want things to go as per my control, my false ego, you know, my kama, my krodha, my lobha, my moha, they should be prioritized, and you should understand that, and while understanding you should accept me as I am. राइट? सोसाइटी में यही चल रहा है ना कि कुछ अलग चल रहा है? नहीं चल रहा है. लोग यही चाह रहे हैं कि आप हमारी चीज़ें पहले रखो, अपनी चीज़ें बाद में रखो. Everyone is trying to do the same thing. That is what, you know, we'll have to understand. And it extends to what point? People identify, you know, I am from this nation, I am from this profession. ना, कोई बोलेगा मैं भारतीय हूँ, कोई बोलेगा मैं अमेरिकी हूँ. भारत में भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं. मैं उत्तर हूँ, मैं दक्षिण हूँ, कहाँ के भारतीय बना देंगे अपने आप को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन, लोग आइडेंटिफाई करेंगे अपने.
कोई प्रोफेशन से आइडेंटिफाई करेंगे, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहता हूँ ना, मैं कॉर्पोरेट जाइंट को बिलोंग करता हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हूँ। लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, ये हमारा पदवी है। कोई गवर्नमेंट पोस्ट में IAS IPS 2 स्टार 3 स्टार, हवलदार भी अपने आप को बोलता है मैं हवलदार हूँ। तो हर एक जन अपने आप को बता रहे हैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। आपको लग रहा है वो हमेशा रहेगा उसके साथ में? नहीं, बस दिस इज व्हाट दे आर आइडेंटिफाइंग विद देमसेल्व्स एंड व्हाट दे आर सेइंग, जस्ट एक्सेप्ट मी एज आई एम। Right? This is what they are saying. Now, the thing is that what we have to understand, this is temporary. Right? ये जो हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या है? टेम्पररी है, स्थायी बोलते हैं ना, थोड़े समय स्थायी नहीं है। मतलब वी कैन से देख क्षण भंगुर बोलते हैं ना, थोड़े समय बाद गायब हो जाएगा ये। कोई सर्विस पे है, बड़े पोजीशन पे, जितना ड्यूरेशन है सर्विस का, उसके बाद उसको निकाल दिया जाएगा वहाँ से। cannot remain there forever, right? So this is the arrogance of a conditioned soul. हमारा जो मिथ्या अहंकार है, हमारा घमंड है ये, जो ऐसे दर्शाता है इस प्रकार से। So वन में से अब ये arrogance है, तो असली चीज़ क्या है? The original duty of the soul is to understand that he is part and parcel of Krishna. That is his main goal, main job, the main duty. But that is what he is not doing. कर नहीं रहा ना वो, यही तो बात है। Now what we can think, कि the mind always bewilders us. So one may think that I have this kind of nature or temperament and everyone should understand me accordingly. बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूँ, by default मैं गुस्सैल हूँ, तो आप मुझको ऐसे ही पसंद करिए, मुझको ऐसे ही आप समझिए ना, मेरे साथ रहना है तो आपको ये झेलना ही पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होता है, एक थोड़ा उल्टे खोपड़ी का हम लोग बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, है राइट? वो बोलता है कि आपको मुझको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं ऐसा ही हूँ। बट वॉट ही डजेंट अंडरस्टैंड दैट इज द कंडीशनड फेस। वो कंडीशनड है वहाँ पे, वो प्राकृतिक नहीं है। That people don't understand. So that is what is explained in Bhagavad Gita. That is why we are telling people to read Bhagavad Gita. We are distributing, trying to push them. You read. हम लोग भी यहाँ बैठ के आप में से बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो दूसरों की बात छोड़ दो। We all should read. Now the thing is, इसके अलावा एक और बहुत अच्छा टर्म है, उस टर्म को क्या बोला जाता है? एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ। लेट मी एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, इसको यूज़ करती हैं ना। जैसे एयरटेल शुरुआती दौर में उसने बोला था एक्सप्रेस योर सेल्फ, हाउ? बाय बाइंग आवर प्लान्स। सो कंपनीज यूज दिस मोटिव कि एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ सो दैट दे कैन टेक मनी फ्रॉम यू। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस? दैट्स द होल पॉइंट। क्या एक्सप्रेस करेंगे आप? अभी हमने जस्ट सुना व्हाट वी आर हैविंग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। अब आपको बोल दे कोई कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, किसी पब्लिक, और अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य प्रेजेंट करो वहाँ पे, हाँ, अच्छा लगेगा क्या? कोई ऐसा बोलेगा अच्छा लगेगा? अच्छे से बोलिए, मतलब रिस्पॉन्स दीजिए, सोचिए। नहीं लगेगा ना। बट सोशल मीडिया क्या है? What is your social media? It is expressing all these things. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस हो रही हैं वहाँ पे। सोशल मीडिया से मतलब सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, आज के डेट में इसी में सब कुछ आ गया है। बट यू सी योर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, आपके बिलबोर्ड्स देख लो, आपके टेलीविजन्स देख लो, चैनल्स देख लो, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो, और सारी चीज़ें जो भी नए बिजनेसेस ये सब आ रहे हैं, सब सेंटर्ड किस पे हैं? सेम थिंग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। इसको हर एक चीज़ को लेकर के मैं एक इंडस्ट्री डिफाइन कर सकता हूँ। काम के ऊपर क्या बेस्ड है, क्रोध के ऊपर क्या बेस्ड है, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य क्या क्या बेस्ड है। आप लोग भी अभी सोचेंगे, अगर उसको, यदि आप लोग को उस शब्द का अर्थ पता होगा तो पता चलेगा।
how many industries are working, and this is their basic principle of working. इनका ग्राउंड ही है on which they work. ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ अलग चीज़ पे ऑपरेट करते हैं. बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स देते हैं वो लोग, मतलब हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं, वी आर डेवलपिंग द फ्यूचर एंड एवरीथिंग. नथिंग, दे आर डूइंग नथिंग. दे आर जस्ट फंक्शनिंग ऑन दीज प्रिंसिपल्स. हाउ दे शुड kind of get it to the higher scale, highest capacity. That is their whole lookout. So what we have to understand from this, कि हम लोग तो यहाँ फंसे हुए हैं, करे तो करे क्या. इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लेट्स से आप मॉडर्न आर्ट ले लीजिए, राइट. पिकासो का नाम सुना है किसी ने? पिकासो सुना है? सच से बताइए कितने लोगों ने उसकी एक भी पेंटिंग देखी हो? किसी ने देखी एक भी पेंटिंग उसकी? गलती से दिख गई हो आप लोगों को? देखिए, कुछ सेंस बना है उसका ना, कुछ समझ नहीं आया ना, लेकिन वो कितने में, लाखों करोड़ों में भी उसका सेलिंग वैल्यू है. स्टूपिड थे. 2 ट्रायंगल बना दिया, उसके ऊपर सर्कल बना दिया और 1 करोड़ों में बिक गई वो पेंटिंग. हमारे नर्सरी के बच्चे बनाते हैं. उसको तो रखते नहीं है, 1 टर्म के बाद रखते भी नहीं है, फेंक देते हैं उसको. फिर वही चीज़ बेचारे मार्बल पेपर से बनाते हैं, ट्रायंगल और सर्कल, राइट. तो आप देखेंगे बड़े बड़े आर्ट गैलरीज में ये सब जगह पे क्या प्रमोट हो रहा है. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर जस्ट प्रमोटिंग दीज थिंग्स टू ग्रेटिफाई. फूलिश आइडिया. उसको क्या बोलेंगे? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ माई सेल्फ, द वे आई सी द सोसाइटी. उसको बहुत अच्छे से दे फ्रेम इट एंड प्रेजेंट इट. इट्स लाइक प्रेजेंटिंग अ स्टूल इन अ केक्स पैकेजिंग, राइट. समझ रहे हैं? यदि आप लोगों को केक के अंदर गोबर भर के दे दिया जाए, एंजॉय. कोई करेगा एंजॉय? अब मैं तो अनलेस एंटिल गाय का गोबर है, मैं खाने के लिए ना उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ प्योर एज पर शास्त्र. केक हटा दो वो इम्प्योर होता है, बट गोबर प्योर है. गोबर का कुछ ना कुछ आप यूज़ कर सकते हैं. कैन मेक मैनी थिंग्स फ्रॉम काउ प्रोडक्ट्स. टूथपेस्ट बन सकता है, काउडंग के लिए यूज़ हो सकता है. काउडंग केक्स बनते हैं, लेकिन वो खाने वाले नहीं होते, कुकिंग वाले होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं. बट लेट्स से अगर किसी और जानवर का हो तो, सो दैट इज हाउ वी आर, हाउ इट इज़ बीन पैकेज्ड. बहुत अच्छे से पैकेज करते हैं उसको, दे प्रेजेंट. और ये सारे वर्ड्स लेते हैं हम लोग मॉडर्न सोसाइटी से. जस्ट एक्सेप्ट मी एज आई एम, just let me express myself. I want to express myself. I want to be free, right? I want to be free. उसके ऊपर भी आएंगे. We'll use all the modern analogies. हम उसको भगवद गीता के बेसिस पे समझेंगे हम लोग, ताकि हम लोग उसको बेवकूफ़ों जैसा बाहर ना यूज़ करें. सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के टाइम पे कैप्शंस में कहीं ना कहीं लोग यूज़ करते हैं ना ये सारी चीज़ें. तो now we'll understand. So the thing is, we think कि ये सारी चीज़ें, अब जो व्यक्ति हमको ऐसा बोलता है, सो व्हाट वी ऑलवेज टेल, वी डू अंडरस्टैंड. ही इज टेलिंग जस्ट एक्सेप्ट मी एज आई एम, यू डोंट अंडरस्टैंड मी. सो व्हाट वी रिस्पॉन्ड इज, यस वी डू अंडरस्टैंड यू, बट यू डोंट अंडरस्टैंड योरसेल्फ. तो वो तो कैसे पागल वाली बातें कर रहा है. फॉर अस ही इज द मैड पर्सन, फॉर हिम वी आर द मैड पर्सन. लेट्स से अगर कोई बोलता है अंडरस्टैंड मी एज आई एम, एंड आई से यस आई अंडरस्टैंड यू, हु यू आर, बट you actually don't understand yourself. Sounds a stupid statement, right? कि किसी व्यक्ति को कोई उससे अच्छा किस प्रकार से जान सकता है. But the thing is, his identification is based on his conditioned nature. When we say that we understand who you are, or when devotees who are practicing this life for a longer period of time, when they say, that means they are identifying him on the basis of as a soul. What is his duty as a soul? What a soul is supposed to do. You have got this human form of body, right? So what you should be doing with it, that is what he is telling, right? So from Bhagavad Gita we understand this. What do we understand? That we are part and parcel of Lord Krishna, and we are meant to serve him. We are meant to serve him. That is the most important thing. कि हमारा काम क्या है? We should serve him. That's the whole point. But what we do, we say that, let me express myself. Now what does this particular expression mean? ये जो शब्द है, ये क्या दर्शाता है पता है आप लोगों को? This is portraying the independent nature of a particular person.
राइट। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि जस्ट एक्सेप्ट मी एज आई एम, जस्ट लेट मी एक्सप्रेस माई सेल्फ, यू नो, लेट मी डू एज आई वॉन्ट, ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना लोग कि ये करने दो, तो ये क्या बताया जा रहा है, दिस इज द कंडीशन, कि मतलब वो इंडिपेंडेंस मांग रहा है, लेट मी बी इंडिपेंडेंट, ये भी स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंस वाला, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। वेरी फेमस कंट्री अमेरिका, इन अमेरिका व्हाट्स दी लाइन उनके कंट्री को कैसे बताया जाता है पता है आपको, द लैंड ऑफ फ्री, लैंड ऑफ फ्रीडम दे कॉल इट, कि वहाँ पे आके व्यक्ति फ्री हो जाता है। बट व्हाट इज दैट फ्रीडम, what is that land of free, how you can say that you are free? We all are seeing, you know, Srila Prabhupada says in Bhagavad Gita that each and every one of us is troubled by the 6 senses. इसी परपट में आया हुआ है, 6 इंद्रियां जो है हमारी, उससे ही परेशान है सब लोग, ग्रस्त हैं उसी से। Everyone is troubled by that. That is what is being spoken. So where is the point of freedom? उसमें फ्रीडम कहाँ आ रहा है तब? कहीं आ रहा फ्रीडम नहीं। अभी समझ लीजिए, एक जानवर है, राइट, जानवर को रस्सी से बांधा हुआ है एक पेड़ में, तो उसके लिए फ्रीडम क्या होगी, बंधा हुआ है ना वो तो। लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप देखेंगे, लेट्स से इफ यू लुक इन विलेजेस पेस्चर ग्राउंड्स, तो कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको 2 फीट तक का फ्रीडम दिया रहता है, 2 फीट की रस्सी होती है, तो उसके लिए फ्रीडम क्या, 2 फीट की फ्रीडम है। कोई होता है जिसको 5 फीट का दिया रहता है। कुछ कुछ बड़ी जगह होती है, जैसे खेत होती हैं, खेत में गायों को जो बड़ा एरिया होता है तो पेड़ से बांध दिया जाता है और 10 फीट का रस्सी बांधा रहता है, ताकि वो जा करके अलग अलग जगह कम से कम घास खा पाए ना, 10 फीट के दायरे में जितना भी घास हो। सो फॉर देम व्हाट इज द फ्रीडम, द फ्रीडम इज दैट 10 फीट, 2 फीट, 5 फीट, बट कैन यू से ही इज एक्चुअली फ्री? आप बोल सकते हो फ्रीडम है उसके अंदर? नहीं, you can't say that he is completely free. But what we are saying, we are asking for independence, we are claiming independence. I am independent, you can't force me, I am independent. We all have our own independence, but it is just, you know, as Srila Prabhupada says that, you know, if you want to understand something, you must stand under first. कुछ अजीब लग रहा होगा ना स्टेटमेंट, बट आप इसको लॉजिकली देखिए। किसी भी चीज़ को समझना है ना आपको, तो किसी चीज़ का आपको शेल्टर लेना पड़ेगा। बिना उसका शेल्टर लिए, जैसे समझ लीजिए किसी को एस्ट्रोफिजिक्स समझना है, बट वो जा करके अकाउंट्स बुक खोल के बैठ गया, राइट, समझेगा वो? उसको एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट के पास जा करके उसके अंडर में सर्व करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यू मस्ट स्टैंड अंडर, दैट इज द फिलॉसफी, द कोर फिलॉसफी, और यू कैन से इट्स अ फैक्ट प्रैक्टिकली, इट्स नॉट जस्ट फिलॉसफी, इट्स अ फैक्ट. That is what we have to understand. So for understanding these concepts, we have to stand under this. This is our shelter, as explained. Standing under devotees, guidance of devotees. That is the whole point, right? So this particular, animal may think that I can be free by struggling with the rope, pulling, pushing. Prabhupada uses the word grappling. Grappling word shloka में आता है. This is what is being used. So now, for us when we say that freedom हम क्यों मांग रहे हैं? What is freedom for us? कोई बताना चाहेगा what is freedom for us? फ्रीडम किस लिए चाहिए होता है? किस कंडीशन में आपको फ्रीडम चाहिए? सफरिंग से फ्रीडम चाहिए. ओके, और हाथ ऊपर करके बोलिए. हाँ, डिसीजंस ऐसे, उससे फ्रीडम क्यों चाहिए आपको? डिसीजन होते हैं ताकि यू मेक डिसीजंस एंड देन यू काइंड ऑफ लाइफ से फ्रीडम चाहिए, न सुसाइड. हाँ, तो बॉन्डेज. ओके, केतन, तो एनीवन हु इज ऑनलाइन दे कैन मैसेज मी इन दिस चैट बॉक्स, तो मैं वहाँ से पढ़ सकता हूँ. यस ब्रो. फ्रीडम बात कर, आप अभी बोल रहे थे शेल्टर लेने का बोल रहे थे, अभी तो आप सबके लिए बोल रहे थे ना, मतलब डिवोटीज के लिए बोल रहे थे. डिवोटीज को पता है, आप अपना बताइए. आप लोग अपना बताइए, आपको किससे फ्रीडम चाहिए? फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम किस चीज़ से चाहिए होती है एक्चुअली? व्हाट इज फ्रीडम?
Why we are asking for freedom? Freedom means we can travel towards the extreme. Freedom, that is crossing the limits. But we have that freedom. No, I am asking why you want freedom. वो फ्रीडम क्यों चाहिए होती है हमको, किस केसेस में चाहिए रहती है? लेट मी एक्सप्लेन. सबसे सिंपल चीज़ है ये. वी ऑल वांट यू नो फ्रीडम, बट द थिंग इज वी वांट फ्रीडम फॉर इंडल्जिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन. समझ रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हमको स्वतंत्रता चाहिए. जैसे ही हमारे इंद्रियों को संयमित करता है कोई, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. राइट? उसका भी उदाहरण मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ. सो वन में थिंक यू नो, बाहर के देशों में यही है, द लैंड ऑफ फ्री जो मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अमेरिका. व्हाट इज द रियल फ्रीडम देयर? दैट यू कैन इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन. यू हैव गुड प्लेसेस, हर एक चीज़ें अच्छी हैं. यू कैन ड्रिंक अल्कोहल, सब चीज़ें टॉप क्वालिटी की मिलती हैं. यू कैन हैव यू नो अनरिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ यू कैन से रिलेशनशिप्स देयर. सब चीज़ें मतलब एक अलग लेवल पे होती हैं. रोड अच्छे हैं यहाँ से ना, बड़ी बड़ी इमारतें रखी हुई हैं, पैसे अच्छे हैं वहाँ पे. सो आपको जो इंद्रिय तृप्ति की सुख सुविधा है ना, वहाँ पे बहुत हाई लेवल की मिलती है. सो फॉर अस दैट इज़ द रियल फ्रीडम. इसीलिए हम लोग यहाँ से पढ़ लिख के बोलते हैं ना, आप बस इस कुएं से निकलना है, बाहर जाना है भाई, ज़िंदगी सेटल करनी है हमको, बाहर जा करके ज़िंदगी सेटल करनी है ना. लेकिन जो बाहर गया है ना, वो भी लेक्चर देने वाले हैं. जस्ट अभी प्रो जी यूएस से रिटर्न हुए हैं, केम फ्रॉम यूएस. ही विल बी स्पीकिंग टू यू ऑल विद इन 2 to 3 days. बताएंगे आपको व्हाट इज़ द रियल फ्रीडम. क्या फ्रीडम है वहाँ पे. इतनी अच्छी फ्रीडम है वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ भी होता है. इफ़ समवन इवन स्मैशेस यू, थोड़ा धक्का लगता है, सामने वाले ने धक्का मारा, ही इज़ ड्रंक and you don't say anything, you just go and कभी कभार देख लेते ना भाई धक्का किससे लगा है. What he does, he pulls out a gun and shoots you. Boom. Freedom. सीधा freed. We are laughing, but उसको सोचिए आप, हम लोग यही फ्रीडम लेने वहाँ जा रहे हैं. They have arm license. आर्म लाइसेंस है, और ऐसे लोगों के पास है who are drunk, जिनकी खुद की सेंसेस कंट्रोल में नहीं है. What they will do? I recently saw a post. I guess I'll be having it in my phone. There was this lady, a student, you know, back in US. So there was this car which was speeding like anything. Speeding, red light था, signal was not that. Evening का time था, and she was crossing the road. Indian student. And that car hit her and she flew away, died on the spot. Flew like quite a distance, अच्छा खासा distance. वो impact से वो हवा में उड़ी, she died, fell and everything. And this recording is from the cop's van. वहाँ पे अमेरिका में हर एक कॉप के वैन के अंदर कैमराज होते हैं, सो दैट दे कैन सी आगे कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. सेंसेस इम्परफेक्ट है तो कैमरा से, एंड इट वाज रिकॉर्डिंग द होल वीडियो. So this police officer who is supposed to protect people, right? So he is telling that, you know, that this particular lady, she is from India, and by the impact it seems she is dead. And then he was laughing. He said anyhow that person actually, you know, paid the fine. जो फाइन होता है रूल ब्रेक करने का, डेथ कन्फर्म, बोले वो मतलब मर गए इतना फिक्स्ड है. बट जो फाइन था समथिंग few $1,000s. And he is saying that, you know, that's the worth of her life. Only some few $1,000s. That's her worth. Right? You want freedom? No? You want to know your worth? You don't know how much I am worth. Use करते हैं. This is the thing. I don't remember the exact place, but I am having that video. It was pretty viral on the, you know, internet. बट हमको कॉन्ट्रोवर्सीज देखने का इतना आदत है कि ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं. गूगल विल प्रेजेंट यू वॉट एवर यू सर्च फॉर पॉइजन, इट विल प्रेजेंट यू पॉइजन. सर्च फॉर नेक्टर, इट विल प्रेजेंट यू नेक्टर. राइट? यू सर्च फॉर भगवद गीता, इट विल प्रेजेंट यू श्लोकस फ्रॉम भगवद गीता. यू सर्च फॉर पॉर्न मैगजीन्स, इट विल प्रेजेंट यू दैट एज यू ऑफर, एज यू डिज़ायर. राइट? समटाइम्स वो अपनी डिज़ायर भी प्रेजेंट कर देता है एड्स के फॉर्म में.
right? That's the whole thing. That is what we have to understand, right? So this idea of freedom, it's a foolish freedom, you can say. It's not the real freedom. That is what we have to understand. Like, let's say small child, he is in a room. What he does? He runs out. और जब बच्चे को पकड़ने आते, बच्चे क्या करते? चिल्लाते, अरे छोड़ो मुझे, बाहर जाने दो, खेलना है, बोलते हैं ना. बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो चिल्लाना चालू कर देंगे. He is asking for freedom. But you know what? What will that freedom cost? लेट्स से आप छोड़ देते हो बच्चे को. इंडिया में हर घर के बाहर, किसी भी जगह पे घर के बाहर रोड ही होते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल आपके पास मैंशन हो, कुछ बड़ा गार्डन हो बाहर. नॉर्मल घरों के बाहर रोड ही होते हैं थोड़े डिस्टेंस पे. ही गोज रनिंग ऑन द रोड, व्हीकल उड़ा दी, गेट्स हिमसेल्फ किल्ड. व्हाट डिड हिज फ्रीडम कॉस्ट हिम? कॉस्टेड हिम हिज लाइफ, राइट? सो if that is the definition of freedom, no one wants that, but that is the kind of freedom which we are wanting. हम बोल रहे होंगे हम तो ऐसा फ्रीडम नहीं मांग रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं बस इंद्रिय तृप्ति थोड़ा बहुत मिल जाए, अच्छा जॉब, अच्छा घर, यही तो मांग रहे हैं हम लोग. और क्या अलग मांग रहे हैं? कुछ अलग नहीं मांग रहे. उसको we'll explain later. We'll take the class till 7:15. I'll try to end it up by that time. So a person should know why did the child run away first of all? Because he doesn't know what is his own benefit. उसको पता नहीं कि उसकी भलाई किस में है ना. उस बच्चे को नहीं पता कि माता पिता अगर पकड़ रहे हैं तो ये मेरे भलाई के लिए है. बच्चे होते कभी कभार मम्मी गैस पे कुकिंग कर रही है, मेरे को भी करना है. छोटे बच्चे होते पंखा चल रहा है, क्यूरियस होते हैं, पंखे में हाथ डाल देते हैं. और पेरेंट्स हाथ ना पकड़े, तो पेरेंट्स किसके भलाई के लिए हाथ पकड़ रहे हैं? बच्चे की भलाई के लिए हाथ पकड़ रहे हैं. तो हमको भी जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे, भगवान अपने लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, वो हमारे लिए बोल रहे हैं. So that we can actually come up from that. So now if one is giving freedom to someone, let's say अगर आप किसी को freedom दे रहे हो and that particular person who doesn't know how to use it, so it is foolishness. If I am giving freedom to someone who doesn't even know how to use that freedom, so what will that act be called? It won't be called generous act कि वाह आप तो बहुत कितने अच्छे हैं, आपने उसको मतलब स्वतंत्रता दे दी, उसको जैसे करना आपने उसको करने दिया. आजकल के लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग कि हाँ आपके बच्चे को जो करना है करने दो. माता पिता लेकिन कभी कभार बोलते नहीं बेटा ये नहीं ये करो. बचपन में थोड़ी अजीब चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो समझ आता है, काश मान लिया होता ना. हमको सीनियर्स हमारे गाइड करते हैं, वेल विशर्स गाइड करते हैं, ये मत करो, इस प्रकार से मत करो, ये नहीं करो. लेकिन वो उस समय समझ नहीं आता. You will understand it, we understand it in the later phase of our life, right? So this is the whole point, So what must be done before giving freedom? अब बोल रहे हैं फ्रीडम देना नहीं है तो उससे पहले कुछ तो करना आवश्यक होगा ना, क्वालिफाई करे ताकि उसको फ्रीडम मिले. क्वालिफिकेशन है. So there are two things that come first. First, a person must be disciplined. Second, he must be educated, right? That is what we are talking about. बहुत सारी चीज़ें हो रही है रूम में, because they are not disciplined, they are not educated, right? So discipline comes first. सिखाने के लिए बच्चों को कभी कभार 2-3 बार मार भी खाना पड़ता है. यहाँ किसी को पीठ पे, किसी को जलाया भी जाता है, उल्टा भी लटकाया जाता है. जिस चीज़ से डर लगती है वो चीज़ आगे रखी जाती है ना. So discipline comes first. Because let's say discipline नहीं है, बच्चा भाग करके रोड पे चला गया, मर गया, कहाँ से एडुकेट करोगे उसको? एडुकेशन आएगा जब तक डिसिप्लिन नहीं है. सो फर्स्ट नीड्स टू बी ही नीड्स टू बी डिसिप्लिन्ड. इज नॉट डिसिप्लिन्ड, no point of education. But right now what is being focused on is education. There's no discipline in your modern education society. सिर्फ डिग्रियां हैं लोगों के पास में. And what they are doing, they are misusing their power. एक पेपर से पढ़े लिखे हैं, हमको चीज़ें आती हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं, लेकिन किसी को देख लें, बूढ़ा व्यक्ति हो या किसी का धक्का लग जाए, पिताजी की उम्र का हो, उसको भी गाली दे देते हैं रोड पे, उस पर भी हाथ उठा देंगे. बहुत जगह आपने देखा होगा वीडियोस में. दैट इज़ आवर एजुकेशन. एंड वी आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ these are the things, prerequisites जो आप क्लास के अंदर आने के बाद में आपको ध्यान से सुनना, आपको ये चीज़ें नहीं करनी, ये ऐसा वैसा, ये हम क्या कर रहे हैं वो भी तोड़ रहे हैं. दिस इज़ द एजुकेशन, दिस इज़ द डिसिप्लिन.
That is what we are trying to teach people. What does that mean? Because society won't teach you. Society doesn't get anything out of you if they discipline you, because you will be difficult to exploit. आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से वो. अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जिएंगे, इफ़ यू नो डोंट लिव लाइक एनिमल्स, जब तक आप इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, छोटे छोटे श्रेयस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, बोलते हैं ना इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं. जानवर भी यही करता है ना. गधे को देखा काम कैसे करता है. गधा टन भर के कपड़े लेता है, लेकिन एक भी कपड़े उसके नहीं होते. किसके लिए? एक गाजर के लिए. एक गाजर के लिए, थोड़ी सी घास के लिए ना. उसको देखा कभी काम कैसे कराते हैं? गर्दन पे ऐसे रख के डंडा, गाजर बांध देंगे आगे, उसके ऊपर टन उसके मुंह से फेन निकल रहा है, आंखें लाल हो रखी है, उसके मुंह से आवाज़ निकलती, गले से ना, जब उसके ज़्यादा लोड डाल देंगे ना, गर्म हवाएं छोड़ता है वो अपने नाकों से. नथुने होते हैं ना उसके, ऐसे फूल करके बलून जैसे हो जाते हैं जब उसके ऊपर लोड रखा जाता है. कभी देखिएगा, हम यहाँ पे तो हमारे गधे शर्ट पैंट टाई में रहते हैं, मॉडर्न डे वाले. जो जानवर गधा होता है ना, जानवर गधा, उसको देखिएगा आप कभी काम करते हुए, इतना मिजरेबल कंडीशन होता है उसका, फिर भी वो काम कर रहा है. इट्स नॉट लिविंग दैट थिंग, नॉट लिविंग. क्यों? लास्ट में गाजर मिलेगा. हमारे भी गधे काम करते हैं, हम भी गधे थे, महीने के एंड में सैलरी मिलेगा, होल पूरा महीना वैसे निकलता है. सो आई विल कवर इट अप, जोक्स बाद में. ओके, सो द थिंग इज, यू नो, I need to be free. That is what people are saying, but people are thinking, what? I can be free from working hard. What is this work lifestyle then? When you are working, we are discussing on work ना, तो आपको बहुत bare minimum टाइम मिलता है. आप घर पे आके ब्रश कर पाओ, थोड़ा सो पाओ, थोड़ा खा पाओ, सो के फिर पूरा दिन आप ऑफिस में रहोगे. फ्रीडम है ये? Is this freedom? ये कंसेप्ट है फ्रीडम का. फीमेल, एक वुमेन लिबरेशन करके मूवमेंट निकला था. You know what was that women liberation all about? किसी को पता? वो एक्ट था that women should be provided equal opportunity to, you know, work in factories as men are doing, right? Same as the men, right? But if you look, वो घर में रह करके काम ना करे, बाहर जाके काम करे. फ्रीडम क्या है? काम तो कर ही रही है ना. Such a foolish idea. लेकिन बहुत सारे हमारे जो एक्टिविस्ट्स हैं, दे आर सपोर्टिंग यस वुमेन लिबरेशन, फीमेल लिबरेशन, इक्वल राइट्स, फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड अभी फेमिनिज्म भी चल रहा है. बट समवन हुज, इसके लिए इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी होना है क्या? किसी को IIT क्रैक करना, PhD करनी है, IQ लेवल 200 के पार होना चाहिए, ऐसा कुछ है? कितना सिंपल है ना. तो क्या था इसमें? फ्रीडम क्या है आपका? वॉट इज योर फ्रीडम? घर में बैठ के बेचारी बर्तन घस रही थी, ऑफिस में जा कर के कंप्यूटर पे, या फिर वहाँ भी कुछ ना कुछ ही काम होगा. सो व्हाई आर दे डूइंग इट? सो दैट यू बिकम इजी टू एक्सप्लॉइट. तो आपके माइंड में फ्रीडम का आइडिया डाल दिया उन्होंने. वायरस होता है ना, और उस वायरस को दे आर फ्यूमिंग, उसको थोड़ा हवा दे रहे हैं ताकि वो जो धुआं है और लोगों के पास फैले. तो ये आइडिया बोल के, अरे तुम तो यार घर में बर्तन घसती हो, मुझको देखो, मैं ऑफिस जाती हूँ, पैसे लाती हूँ, पति के ऊपर कुछ डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए कभी भी मन किया कहीं चले जाओ, कुछ कर लो. फाइनेंशियल फ्रीडम है हमारे पास आज की डेट में. दैट इज द होल पॉइंट. बट हु नोज फ्रीडम? हु इज नोइंग फ्रीडम? दैट्स द होल पॉइंट. सो नाउ लोगों को लगता भी होगा, अभी जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग में से, आप लोगों को लगता होगा काम पे आना कितने मज़े वाली बात है. सुबह सुबह मस्त ड्रेस हो करके, यू गेट इन योर कार, टैक्सी लो, कैब लो. सुबह सुबह देखते होंगे ना मूवीज़ में, कोई मुंह में ब्रेड दबा के भाग रहा है. क्या फनी लाइफ, मतलब कितना मस्त लाइफ है ना, थ्रिल वाला लाइफ. हाथ में ब्रेकफास्ट लिया है, कोका कोला लिया, स्टारबक्स की कॉफ़ी लेकर के, एक सूटकेस लेकर के, मस्त टाई पैंट, बाल में जेल लगा करके जा रहा है ना. ऐसे सिर्फ पिक्चर में ही होते हैं. जो यहाँ जॉब करते हैं उनसे पूछो, एक शर्ट बाहर निकला हुआ है ना, जूते फटे हुए, चूहा काट के चला गया है ना, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, शेव करने का टाइम नहीं है, डेडलाइंस की वजह से डार्क सर्कल पड़े हुए हैं, खाना नहीं खाया जा रहा, ओबेसिटी हो रखी है, कमर दर्द हो रखा है, थेरेपी के लिए टाइम नहीं है ना, ऊपर से खड़ूस बॉस मिला हुआ है, कुछ करे जा रहा है ना.
देखिए जितने सबसे जोरदार हंसी उन्हीं की है जो सफर कर रहे हैं इस रूम में। 2000 पीपल वर लाफिंग बिकॉज हम सभी का वही डिल्यूजन था, सभी का वही डिल्यूजन था। दैट्स द होल पॉइंट। सिमिलरली वी डोंट हैव एनी फ्रीडम। जीवा डजंट हैव एनी फ्रीडम, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। व्हाई? यू नो, लाइक बॉस ऑफ सम कंपनी, कोई भी एक कंपनी ओन करता हो, वो क्या सोचे कि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, अगले जन्म में मैं वापस इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनूंगा। नॉट पॉसिबल सर, sorry, this facility, this option is not available to you. He might have some freedom कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको अच्छे से पे करो, काम नहीं कर रहा है तो आई कैन उसको बाहर निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन उसके पास ये फ्रीडम नहीं है क्योंकि लिए वो जिस भी प्रकार से शरीर छोड़ता है तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर व्हाट ही विल डू, ही हैज टू टेक बर्थ अगेन। He can come, but it will his particular species and which species he will come, that will be decided by the nature. प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः. Lord says it is under his control. मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम. Right? So that is decided by the nature itself. और कोई नहीं डिसाइड कर सकता वो. No one else can decide. Just like in Stockholm, when Srila Prabhupada was there, so वहाँ पे एक बिल्डिंग रेंट पे लिया था डिवोटीज ने, तो उसको जब ओपन किया तो एक चूहा निकल के आया, भाग के आया उसमें से, जैसे उनका डोर ओपन किया. Srila Prabhupada said he was the owner of this house last in his last birth. तो कभी कभार आप किसी चीज़ से आसक्त हो जाते तो उस घर में आते हैं, आप जन्म लेते हैं, लेकिन चूहा भी यही सोचता है ना मेरा घर है, चूहा का इसके लिए पड़ा ही रहता है, वो उसकी जनरेशंस पड़ी हुई हैं, कभी निकलेगा ही नहीं वो, कितनी भी साफ सफाई करा लो, कुछ करा लो. तो लोग भी ऐसे ही होते हैं, दे आर ऑल्सो द सेम थिंग. सिमिलरली इफ वी आर टू अटैच्ड वी माइट टेक बर्थ, बट दैट डजंट मीन यू नो दैट वी एक्चुअली, वो फ्रीडम है कि मैं वहाँ तो आ ही गया हूँ. सो सेम गोज विद द रिलीजन, यू नो, जस्ट लाइक वर्क में हम लोग क्या देखते हैं, मेरे पर्क्स क्या क्या है, मेरे को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, राइट, मेरे को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आगे मैं क्या करियर सेटल कर सकता हूँ. आज की डेट में रिलीजन के साथ भी लोग वही कर रहे हैं कि इस रिलीजन में क्या मिलेगा, उस रिलीजन में क्या मिलेगा, कैसे होगा. बहुत सारे लोग वही चीज़ें प्रोवाइड करके, देयर आर सो मेनी कन्वर्जन्स गोइंग ऑन, राइट. हमारे मूवमेंट में ही बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज हैं कि हम तो इस्कॉन गए थे, इस्कॉन में कुछ हुआ नहीं, बाद में शिरडी चले गए, शिरडी में सारी मुरादें पूरी हो गई. ये बाबा के पास चले गए, यहाँ मुरादें पूरी हो गई. So it's like they are having their wishes fulfilled. That's their goal. They think who is Lord? Lord should come. He massages them. अच्छे से मसाज करे, सुबह आके गाना गा के उठाएं भगवान उनको, फिर भगवान को लिस्ट देते हैं, भगवान ये देखो ये मेरा प्रॉब्लम है, थोड़ा सेटलमेंट कर दो, ठीक है ना, फिर वो सेटलमेंट भी कर दें. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉर्ड दैट वी आर हैविंग. बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पे रहने से क्या हो रहा है, जिंदगी में डिफिकल्टीज ही आ रही हैं. बट इफ यू टेक अप श्रीमद् भागवतम, इफ यू टेक अप पुराणस, जो भगवान के बड़े बड़े भक्त रहे हैं, आप 5 पांडव की बात कर लीजिए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सबका जीवन आसान था, कठिनाई थी, लेकिन क्या चीज़ ग्लोरीफाई की उनको? व्हाट वाज दैट ग्लोरीफाइंग फैक्टर? यू नो, फॉर देम इट वाज नो डिफिकल्टी. बिकॉज व्हाई डू वी फाइंड समथिंग यू नो डिफिकल्ट? हमको कोई चीज़ डिफिकल्ट क्यों लग रही है? बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी आर अनेबल टू, यू नो, वी आर हैविंग सम बॉडीली डिस्कम्फर्ट. हमको कुछ ना कुछ अपने पर्सनल लेवल पे हमको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. हमको हमारा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए संसाधन नहीं मिल रहे हैं. वी आर नॉट गेटिंग यू नो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. फॉर अस दैट इज द डिफिकल्टी, दैट इज द मेन थिंग. वही हमारी किसी के लाइफ में डिफिकल्टी आती है, कभी उसके पास पैसों की तंगी होगी, कभी खाने के लिए नहीं होगा, कभी रहने के लिए घर नहीं होगा, मरम्मत करने के लिए घर नहीं होगा, पैसे किसी और चीज़ के लिए, यही तंगी होती है ना, यही सारी चीज़ें ना. दीज आर ऑल द डिफिकल्टीज ना विच कम. और भक्तों के जीवन में आती है, लेकिन भक्तों के लिए दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. भक्तों का जीवन ऐसा है ना, अगर आप सुनेंगे आप भी सोचने लगेंगे. इट इज जस्ट लाइक दैट ऑफ एन सोल्ड आउट एनिमल. जो जानवर बिक जाता है ना, उसका पर्सनल कुछ नहीं होता. फॉर हिम द सर्विस ऑफ हिज मास्टर इज एवरीथिंग. अगर मास्टर उसको खाना दे तो खाएगा, नहीं दे तो नहीं खाएगा, लेकिन वो सेवा करेगा. सेवा के लिए नहीं बोलेगा भाई तुम खाने नहीं दे, सेवा नहीं करूँगा मैं. डिवोटी इज लाइक दैट. दैट इज द टेस्टिंग फेज. प्रहलाद महाराज को क्या क्या नहीं किया, सांपों के कुएं के बीच डाल दिया. होलिका दहन जो हम लोग मनाते हैं,
उस पर बिठा करके आग लगा दी, पहाड़ पे से हिरण्यकश्यपु ने फेंका, इतना मारने का प्रयास किया। उन्होंने कभी नहीं बोला मेरे जीवन में इतनी डिफिकल्टी आ रही है, भगवान एक काम करता हूँ मैं अभी शिरडी चले जाता हूँ। Didn't do that. That's the faith of a devotee. Faith of the devotee ना लोग। श्रीधर कोलावेचा क्या था पता है आपको? उनके घर चोर आया था एक। उनके घर की छत थी ना, चैतन्य चरितामृत में आता है, उस छत पे भी छेद थे, मतलब वो बोलते हैं ना हम लोग ओवर रूफ, आजकल पे करते हैं लोग ग्लास रूफ के लिए, ट्रांसपेरेंट दिखे चांद तारे, उनको ऐसे ही दिखता था उस टाइम पे, होल था उसमें। उनके पास एक कपड़ा था, अंग वस्त्र, उसमें छेद ही छेद थे हर जगह। एक लोटा था जो पानी पीने के लिए और बाकी सारे कामों के लिए यूज कर, पचका हुआ लोटा, यहाँ वहाँ से पचका हुआ, दैट इज वॉज हिज पोजेशन। एक चोर आया उनके घर से, वो अंधेरा था तो लोटा लेके चला गया, सोचा इसका कुछ वैल्यू होगा। सुबह में जब देखा रही है लोटे की हालत तो ऐसी है, वापस गया रख के आ गया। बट यू नो व्हाट, जब चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा इन हिज फॉर्म व्हेन ही कम्स इन कलियुग, चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी एंड कृष्ण's combined form, श्रीधर कोलावेचा वाज वेरी डियर टू हिम। और वो बोलते थे कि आप जो नाटक कर रहे हो ना गरीब रहने का, आपके पास सबसे मूल्यवान वस्तु है और एक दिन मैं सबके सामने दिखा के रहूंगा। केले के पत्ते बेचते थे श्रीधर कोलावेचा, और वो भी जो पैसे मिलते थे ना, उसमें से भी मेजर पोर्शन वो गंगा जी के आरती में दे देते थे, पैसे दे देते थे, राइट। और तो जब चैतन्य महाप्रभु आते थे छोटे निमाय के फॉर्म में, वो उनसे भी उसमें भी डील करते थे, मिनिमम प्राइस में एक तो बेचते थे, वो लोगों को ठगते नहीं थे, मतलब ऐसा बड़ा बड़ा टैक्स और GST का सिस्टम उस टाइम नहीं था, तो वो जितना रीजनेबल प्राइस था उसमें बोलते थे ये लेना। तो उसमें चैतन्य प्रभु, नहीं तुम ठग रहे हो मुझको, कहाँ लेके जाओगे इतने पैसे, हाँ मुझको ठग रहे हो, और गरीब होने का नाटक कर रहे हो, ऐसे कपड़े वपड़े। तो फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु वॉज डूइंग हिज पास्ट टाइम्स, सो ही सेड श्रीधर को बुलाओ, कॉल श्रीधर। सब सोच रहे कौन है श्रीधर, कौन है श्रीधर, तो उनको लेके आए। When he called him, you know, then Chaitanya Mahaprabhu said that you know whatever Sridhar you want you tell me। भगवान ने अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखाया उनको। श्रीधर कोलावेचा said you know I have only one desire, my only desire is that you in the form of Nimai Pandit, the way you joke with me, you know, you do that with me and I remember that pastimes for time immemorial, I have nothing to ask more। उसके पास कुछ सुख सुविधा नहीं है, पचका हुआ लोटा है, छेद वाली उसके अंग वस्त्र हैं ना, और टूटा हुआ घर है, मांग सकता था कुछ, खाने के लिए भी कुछ नहीं उसके पास, जो पैसे मिलते थे वो भी गंगा आरती में दे देता था। कुड हैव आस्क्ड ना, बहुत सारी चीज़ें मांग सकता था। हम में से कोई होता एक डुप्लेक्स बंगला मांग लेता, और एक लाइफ टाइम के लिए अन्न सोर्स मांग लेता ना पूरा, मतलब जो सुदामा भवन था इंद्र का, जहाँ पे अंदर जाओ तो बुढ़ापा नहीं आता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं, वही वाला मंगवा दो हमारे लिए, और कुछ नहीं चाहिए ना, हम लोग मांग सकते। देन चैतन्य महाप्रभु से, देखो आज मैंने इसका धन दिखा दिया, इसके पास कौन सा धन था, यही धन है इसके पास जो इसने छुपा के रखा था, दैट इज लव ऑफ गॉडहेड। So instead of always saying, you know, accept me as I am, let me express myself, try to be something which is being instructed in Bhagavad Gita. Try to become a devotee. Even if you act, Lord will take you back home, back to God. That's the whole point. So Hare Krishna, I would like to end here. And if anyone is having any questions, they can ask. We have some time. Any questions? Yes, bro. आपको सुन के अच्छा लगा।